بڑی دل سوزی سے دعا کرتا ہے اور اس کا پسینہ جو ہے گویا جو ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر گرتا ہے، کیونکہ اس کا سر شبنم سے تر ہے. وہ اپنی کلیسیا سے ملنے آیا ہے، رفاقت رکھنے آیا ہے. لیکن کلیسیا کی کہتی اور کلیسیا نے جو بھی جواب دیتا ہے، آگے سے سولمیل کیا جواب دیتی ہے؟ سولمیل کہتی ہے میں کپڑے اتار چکی اور میں اپنے پاؤں دھو چکی، اب کیوں کر میلا کروں؟ پہلا کی کہتی ہے میں اپنے کپڑے اپنے پاؤں دھو چکی، اب پھر کیوں انہیں میلا کروں؟ شول میں جو ہے اپنے سارے دن کے کام کاج سے آپ اپنا واپس آئی ہے، اپنے گھر میں ہے، محبوب نے دستک دی ہے، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے اپنے کپڑے بدل چکی ہوں. آج ایماندار اپنے کاموں میں اس قدر مگن ہے، کلیسیا کے کاموں میں، منادی میں اس قدر مگن ہے کہ خدا سے شخصی تعلق کا اس کے پاس وقت نہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا اسے خیال نہیں. اور وہ کیا کر چکا ہے؟ اپنے راست بازی کے کپڑے اتار چکا ہے اور دنیا داری جو ہے اپنے اوپر مسلط کر چکا ہے. یہ وہ شخص ہے، یہ کلیسیا اس شخص کی مانند ہے جو کلیسیا میں جو ہے وہ بڑا سرگرم ہے، جو ہونٹوں سے اس کی پرستش کرتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے مجھ سے دور ہے. وہ جو جب عبادت میں ہے تو وہ سرگرم ہے، منادی کرتا ہے تو پوری سرگرمی سے کرتا ہے، لیکن جب محبوب کے ساتھ تعلق کی باری ہے، محبوب کے ساتھ تعلق کی باری ہے تو اسے محبوب کے کو سنانے کے لیے بڑے بہانے ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑی بات ہے. اور اس نے کہا کہ میں اپنے پاؤں دھو چکی، یعنی پچھلا کے خوشخبری کے جوتے اتار دیے ہیں، ریلیکس ہو چکی ہے. یاد رکھیے ایماندار زندگی کبھی ریلیکس نہیں ہو سکتا. یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے، 24 گھنٹے ہوا وقت ہمیں تیار رہنا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس نے اسے کیا جواب دیا؟ اس نے اپنے محبوب سے دنیا داری کو ترجیح دی، دنیا داری کے کاموں کو اوپر جانا، اپنے آرام کو ترجیح دی. آج جو ہے کلیسیا جو ہے وہ کلام سنانے میں بڑی مستند ہے، کلام سنانے کے لیے ہم بر وقت تیار ہیں، منادی کرنے کے لیے ہم بر وقت تیار ہیں، لیکن محبوب کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں جو ہے وہ ہم ناکام ہیں. شخصی تعلق نہیں، شخصی رفاقت نہیں، لیکن محبوب جو ہے وہ شخصی رفاقت چاہتا ہے. وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، تیرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ محبوب نے کہا میرے لیے دروازہ کھول، تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہ جواب تھا میں جو ہے کپڑے بدل چکی. ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں. آج کا ایماندار کے پاس خدا کو بتانے کے لیے بڑے بہانے ہیں. یا یسوع کام بڑا لے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، کریے کی گھر میں پا لیے، روٹی میں چلائیے. لے پچھلے ہفتے کی بات ہوئی میں آ گیا کی کری میں تو نہیں جانا نہ جائیے تو وہ نک نہیں رہی. انہوں نے کیا تیرے 4 بجے مت آیا ہوں آیا تو لے گئی تو گل ماڑی ہو گئی. بڑے بہانے ہیں خدا کو بتانے کے لیے، رفاقت توڑنے کے لیے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس عورت نے جو ہے چولمیت نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ انکار کیا. اور لکھا ہے کہ جب میرے محبوب نے کیا، محبوب یہاں نہیں، پھر بھی جو ہے اس نے اپنا منہ نہیں پھیرا کہ جو ہے محبوبہ نے جواب دے دیا ہے. تو محبوب لکھا ہے کہ اس نے سوراخ سے اپنا ہاتھ کیا کیا؟ اندر کیا. اور جب اس نے سوراخ سے اپنا ہاتھ کا اندر کیا تو لکھا ہے کہ اس ہاتھ کو دیکھ کر میرے دل میں چھپش ہوئی، میرا تن من جو ہے وہ چھپش ہو گئی. کیونکہ جب اس نے ہاتھ پر نگاہ کی تو اس کی ہاتھ پر جو ہے وہ شولمیت کی تصویر بنی ہوئی تھی. اور عیسائیہ نبی کا صحیفہ بیان کرتا ہے کہ تیرے محبوب خدا نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور سدا وہ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوتا، وہ تجھ سے منہ نہیں پھیرتا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا اور اس کے دل میں جنبش ہوئی تو پھر اسے یاد آیا میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت رکھتی ہوں، اس نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، یہ میرے لیے دھول کے ملک سے آیا ہے. تو لکھا ہے کہ پھر دوڑی
दौड़ी कि अपने महबूब के लिए दरवाजा खोले, लेकिन होया कि महबूब जो है वो इंतजार करके हम कहते हैं कि जब हम पुकारे तो आए, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हो उनके दरमियान में मौजूद हूँ। हम दुआ करते हैं यहोवा मैं पुकारता हाँ मेरे बात तुझे दिया, लेकिन कभी जब उसने तेरे दिल पर दस्तक दी है तूने दरवाजा नहीं खोला, तूने अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। लेकिन याद रख इस दरवाजे का बनाने वाला वो है, इस दरवाजे का मेकर वो है। अगर वो चाहे तो इस दरवाजे को तोड़ के भी आ सकता है, वो इसे तोड़ सकता है, वो जबरदस्ती तुझ पर सकूनत कर सकता है, लेकिन दर हकीकत वो कभी तेरी आजाद मर्जी पर असरअंदाज नहीं होता, तसल्लुत नहीं करता। वो चाहता है कि तू अपने दिल से चाहे और उसे शख्सी निजात नहीं कबूल करे, उसे अपने दिल में दावत दे, हाँ वो तेरे साथ आए, तेरे साथ बैठे, खाना खाए, रफ़ाकत करे। ये है तेरा पूरा। और लिखा है कि महबूब चला गया। कौन चला गया? महबूब चला गया। अफसोस उस पर, उसका महबूब जो है वो चला गया और वो कहता है मेरी उंगलियों से रफीक मौत तवक्ता है। मुंह जो है वो मौत की आजमाइशों का जो निशान है, मुसीबतों का निशान है। यानी इस औरत ने जो है अपने महबूब के लिए दुख सहे हैं। अगर हम इफ्सस की काशफा की किताब का मुताला करें, इफ्सस की कलीसिया को खत लिखते हुए वो कहता है कि मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूँ, मैं तेरी मुशक्क़तों को जानता हूँ और उन कामों को तू जानता है जो तू मेरे लिए करता है। मैं जानता हूँ तू थका नहीं, तू दिल ले रहा है, तेरा हौसला टूटा नहीं, लेकिन मुझे तुझसे एक शिकायत की है, तूने पहली सी मोहब्बत मुझसे छोड़ दी। तेरा रिश्ता पहले जैसा मेरे साथ नहीं रहा। गो तूने जो है मेरे लिए दुख सहे हैं, मेरे लिए मुसीबतें सही है, लेकिन जो पहले तू काम मुझसे मोहब्बत रखता था अब नहीं रखता था। अगर हम थवातीरा की कलीसिया का मुताला करें तो वहाँ क्या बताता है, मैंने तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और उस खिदमत और सब्र को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम जो है मैं तेरे किसको जानता हूँ, तेरी ईमान को भी जानता हूँ, तेरी मोहब्बत को भी जानता हूँ और तेरे सब्र को भी जानता हूँ और तेरे पिछले कामों से भी वाकिफ हूँ। लेकिन एक बात है कि तेरे जो पिछले काम है वो उनसे ज्यादा है जो तू अब करता है। अब जो काम है वो पहले जैसे नहीं, तू डोल चुका है, तूने पहली सी मोहब्बत मुझसे कायम नहीं रखी, तू बरकश्ता हो गया है, तू मुझसे मुड़ गया है और तूने अपना तल्लुक जो है मुझसे फेर लिया है। और वो कहता है, दाऊद क्या कहता है, ज़बूर 119 में कहता है, मैंने तेरे पैमान को जानने में जल्दी की, देर न की। और फिर जो है अगर हम पतरस का खत उसके दूसरे बाब का तीसरे बाब का मुताला करें तो कहता है मुबारक है वो आदमी, कौन शख्स? मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजे की चौखटों पर ठहरा रहता है। मुबारक है शख्स। और दाऊद कहता है मुबारक है वो शख्स जो तेरे खैमा में रहता है, जो तेरी हसूरी में जिससे पनाह मिलती है। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इसने बहाने लगाए, देर की। याद रखिए कभी हमेशा खुदा का कलाम तुम पर नाज़िल नहीं होगा, सदा खुदा तेरे साथ तमीज़ नहीं करेगा, सदा खुदा का कलाम तुझ तक पहुंचेगा नहीं। अगर आज खुदा का कलाम तेरे दिल पर दस्तक दे तो देर न कर, फौरी तौर पर दरवाजा खोल। लेकिन याद रख, अगर हम मिसाल की किताब का मुताला करें, पहले बार में उसे सुलेमान बयान करता है कि जब मैंने पुकारा, खुदा कहता है जब मैंने पुकारा तूने जवाब नहीं दिया, मैं बाहें पसार कर खड़ा रहा लेकिन तूने मेरा ध्यान न किया। अब तू अपनी मुसीबत के दिन मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा, तू अपनी मौत के दिन मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अब तो वो कहता है मुझे ढूंढोगे तो खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, लेकिन उसमें लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और ना पाओगे, खटखटाओगे तो खोला नहीं जाएगा। लेकिन शायद आज तेरे लिए वक्त आ गई है, इस वक्त तो गरीब मत जा और खुदा मुझे यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दे। और वो क्या हुआ? फिर दौड़ी, जब महबूब चला गया तो दौड़ी, अपने महबूब के लिए दौड़ी। और लिखा है कि शहर के पहरेदार
सियासेतदारों के पास गई, इस दुनिया के हाकिमों के पास, इस दुनिया के खुदा के हाथों में चढ़ गई, बरगश्ता हो गई। उन्होंने नुकसान को पहुंचाया, मारा कूटा, उसे जलील किया, तितर बितर किया। याद रखिए, अगर तू खुदा से बरगश्ता हो गया, खुदा की आवाज को तूने सुना ना, उससे अपने दिल में दावत ना दी, तो ये दुनिया का खुदा जो फाड़ने वाले शेरे बब्बर की तरह गढ़ता फिरता है, वो तेरे जिंदगी में आएगा, तुझे फाड़ डालेगा, तुझे बर्बाद कर देगा और तेरी रूहानी जिंदगी का खात्मा कर देगा। और फिर वो शहर के मुहाफिजों के पास गई। और शहर के मुहाफिज कहने ने तो साढ़े वर्गे पादरी जिन्हें खुदा ने शहर का मुहाफिज बनाया, शहर के लिए दुआ करें, शहर के लिए दुआ करें, शहर के लिए मुनाजातें करें, खुदा से कहें कि खुदा इस शहर को सरफराज रख, सरबुलंदी बख्श, गुनाह में अपने बड़ी से दूर रहे। तो उन मुहाफिजों ने क्या किया? लिखा है कि उन्होंने उसकी चादर छीन ली। आज जब एक शख्स बरगश्ता हो जाता है तो एक ईमानदार का क्या किरदार है? क्या उसे तसल्ली देता है? क्या उसे भीख देता है? क्या उसके हौसले को बढ़ाता है? क्या उसे जो है वो खुदा का कलाम सुनाता है? तू सकता है, तू जो है वो तेरा खैर नहीं हुआ, तू दोबारा दौड़ सकता है, तेरी दौड़ खत्म नहीं हुई, और तू अगर दोबारा दौड़ेगा तो तू फिर जीत जाएगा। कभी क्या तूने उन लोगों को जो बरगश्ता हो चुके हैं, तूने उनको दिलासा दिया? लेकिन इन मुहाफिजों ने क्या किया? उन्होंने उसकी चादर को छीन लिया। आज जो है जब एक बरगश्ता शख्स किसी ईमानदार के पास जाता है, बजाय कि दिलासा दे तो को बोले के ले तेरा काम करना वो तेरे समझ नहीं आई, बोला वो तो बढ़िया उठिया उठिया दुआ कर, तो मैं कहना छोटा कलाम सुनाया कर, तू तो 1.5 घंटा थले छाई नहीं लगती है, फोन देखा फंस गया तेरा इंज होना सी चंगा हो जाता है। डिग्रेड करते हैं रूहानी जिंदगी, जो शायद उठ सकती हो उसे जो है वो खत्म कर देते हैं। याद रखिए, ऐ शहर के मुहाफिजों, तुझे खुदा ने गिरे हुओं को उठाने के लिए मुकर्रर किया है ना, डिगे और धबल नहीं। आज का ईमानदार जो है वो गिरोह को जो है वो दफनाता है, खत्म करता है। लेकिन याद रखिए, खुदा ने अगर तुझे शहर का मुहाफिज करा दिया है तो तेरा काम जो है वो तसल्ली देना है, उम्मीद देना है, तशफ़ी देना है, ना कि उनके गुनाहों पर उन्हें मुलामत करना है। और लिखा है कि मारी गई जो है वो घसीटी गई, उसका हाल जो है वो तितर बितर हो गया। और फिर क्या कहती है? ऐ यरूशलेम की, ऐ यरूशलेम की। और यहाँ यरूशलेम की बेटियों से मुराद जो है वो ईमानदार है, ईमानदारों से फरियाद करती है। यदि आज तक एक हो रहा मसला है, ईमानदार में किसी का नहीं सोचता, ईमानदार भी आपकी दो है और वो पता क्या लग रहा है, वो कल ही नहीं समझे, कोई आसे पास पीछे कोई नहीं, वो कल ही नहीं समझे। और वो गोल भी आवे ना थोड़ा प्यार खेलना वो ये क्यों आप याद रखिए। कहता है यरूशलेम की बेटी। इसके बाद जो है वो कहता है कि तेरा महबूब में दूसरों से क्या जो है। अब उसके बाद 10 मूवियाँ अपने महबूब की बयान करती है, लेकिन कहना चाहता है इसमें ऐसी मजमून जारी रखी, ऐसी मजमून जारी रखी, कहना चाहता है ऐसी मजमून से अकेले आगे। इसके बाद जो है वो अपने जब वो यरूशलेम की बेटियों से मुखातब होती है, वो अपने महबूब की 10 खूबियाँ बयान करते हैं। कितनी खूबियाँ? अगर चाहते हैं इस मजमून जारी रखने में अगर आप सोच ठीक है। सो अगर आप चाहें तो हम इस मजमून को जारी रख सकते हैं। सो आइए अपने सर को खुदा के हुज़ूर में झुकाएं। हालेलुया, बहन साइड का आदर। सो हालेलुया यीशु के नाम, हालेलुया हालेलुया। आइए अपने सर को खुदा के हुज़ूर में झुकाएं। हालेलुया यीशु के नाम। खोल दे यीशु आना चाहता है, दिल दे बूहे खोल दे यीशु आना चाहता है। तेरे घर विच यीशु तेरा पौना चाहता है, दिल दे बूहे खोल दे यीशु आना चाहता है। तेरे घर विच यीशु तेरा पौना चाहता है, दिल दे बूहे खोल दे हो। छड़ दुनिया दिया खाशा
ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ